Hello students, welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will continue coordination compound division, and we will see the some examples of outer orbital complex and inner orbital complex. In the last class, we have defined what is outer and inner orbital complexes. Now you see the first inner orbital complex. Inner orbital complex, and 6 ligand कॉम्प्लेक्स हम ये देखेंगे। हम लोग यहाँ पे 6 लिगेंड कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, ठीक है। 6 लिगेंड कॉम्प्लेक्स, and first is the inner orbital. In inner orbital you will see CuNH3 whole 6, CuNH3 whole 6, and power is +3. Okay, now see here how we will prove that inner orbital and outer orbital. Okay, first of all we will write the electronic configuration of 27 and 3d7 and 4s2, 3d7 4s2. Okay, 3d7 4s2, and if you have to write +3, then it will be 3d6 4s0, and the orbital will be, here is the orbital, you will see of different energy, 1 2 3 4 5 6 7. This is the 3d, and here is the 1 2 3 4 and 5. Okay, and here S has 2 electrons. Now you will see here S is vacant and P is vacant. Okay, and here is 6 electron, 1 2 3 4 5 and 6. Now we have to make the hybrid orbital, hybridization. One will be happen. Cyanide is ammonia is very strong. Ammonia is very strong. Ammonia is very strong orbital ligand. Therefore, it is able to pair up electrons. Okay, one, 2, 3, 4, 5. Now here is 1, 2, 3. Here is paired up. This much is the hybrid orbital. This one is the hybrid orbital. D to sp. This one is the d orbital, s orbital, p orbital. This is the 4s 3d.
sp3 octahedral. Okay, octahedral. First of all, we have to write the electronic configuration of main element without any charge. Then we will make the electronic configuration with the charge. For that we will remove electrons from the first 4s, then from the 3d. Then we will find 3d 6 4s not. During hybridization, all orbital become will of equal energy. सभी क्या हो जाएंगे? इक्वल एनर्जी के हो जाएंगे. ठीक है. और अगर ये इक्वल एनर्जी के हो जाएंगे तो अब ये हाइब्रिडाइज हो सकते हैं. अब हमें अगर बनाना है CONH3 whole 6, okay, 3 plus. Now what will happen? You will see that this one is the 4s p, this is the p orbital. Now here is paired electron, here will be NS3, NS3, this one is the 3d, here is 4s. Now you will see here is 4s, 1 is here and 3 is here. NS3, 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 NS3. Okay. This is the mechanism. First of all, we do the electronic configuration of main element. सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे. फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे चार्ज वाला. 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, बाहर से 2 एक और एक इसमें से. तो हमारे पास यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं. ये 6 इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज हो जाएंगे. अब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल भर गए, बाकी 2 3d के, एक s का, 3 p के ऑर्बिटल मिक्स होकर के सेम एनर्जी के हो गए. अब हमें कॉम्प्लेक्स का बनाना. अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं. एक तो ये इनर ऑर्बिटल है, यहाँ पे क्या मिलना है हमें? D2sp3, D2sp3 हमें मिलना है. ठीक है, D2sp3 मिलना है. तो एक तो ये इनर ऑर्बिटल है, दूसरे क्या है? डायमैग्नेटिक. क्या है? डायमैग्नेटिक. ये क्या है? डायमैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक. ओके. डायमैग्नेटिक का मतलब हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करेगा, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा. ठीक है. ये किसी प्रकार का अट्रैक्शन नहीं शो करेगा, रिपल्सन शो करेगा. तो ये हो गया हमारा आउटर ऑर्बिटल का एग्जांपल. कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू इसको जान सकते हैं, बना सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हमें पता लगेंगी. हमें ये पता लगेगा कि इसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल है, और इसके बाद हमें ये भी पता लगेगा कि इसका नेचर कैसा है, मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक. तो हमने यहाँ पे देखा ये क्या था, डायमैग्नेटिक था. मैग्नेटिक फील्ड में ये रिपल्सन शो करेगा. मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा? रिपल्सन शो करेगा. नाउ हम लोग देखेंगे आउटर ऑर्बिटल. क्या देखेंगे? आउटर ऑर्बिटल. आउटर ऑर्बिटल. आउटर ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया? वीक फील्ड लिगेंड. वीक फील्ड लिगेंड.
अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3d2 होगा, ये आउटर ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें एक चीज मिलेगा पैरामैग्नेटिक नेचर मिलेंगे। अब इस चीज़ को हम प्रूफ कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेम है एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। CO Fe और F6 3-. Now for CO we have seen 27 3d7 4s2 3d7 4s2. Okay. Now for the CO3 plus oxidation number is 3, then it will be 3d6 4s0. Now the orbital will be like this, 1 2 3 4, then S and then P. Okay, this is the 3d 4s and 4p. Okay, now here is the again D, 1 2 3 4. This is the 4d. Okay, this one is the 4d. Okay, now we have to distribute 1 2 3 4 5 6 4 and 6 is here. On hybridization जब हाइब्रिडाइजेशन होंगे तो क्या होगा, इस ऑर्बिटल में कोई पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो लिगेंड है that is very weak. One ligand is very weak. Okay, so next 6 orbital will be hybridized, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 6. Okay, and here is the remaining 1 2. Okay, this is the 3d. Now 4s 4p and 4d, and this much orbital from here to here, 1 2 3 4 6. This much orbital will be hybridized, sp3d2 hybrid orbital. Now what will happen, क्या होगा यहाँ पे, अब हमें हाइब्रिडाइजेशन करना है CO F6 3-. Now the outer orbitals, 6 orbital, 2 3 4 5 6. Here will be one F, 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 and here will be one F. This is the octahedral. Okay, this is the octa. Now we are seeing the 6 electron ligand, 6 ligand complex. Since
फ्लोरीन इज वेरी वीक लिगेंड, फ्लोरीन बहुत वीक लिगेंड है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना फोर्स नहीं कर सकता है कि ये इसके साथ पेयर अप हो जाए। तो इसलिए फ्लोरीन आउटर ऑर्बिटल को यूज़ करता है, आउटर ऑर्बिटल को यूज़ करता है। यहाँ पे हमें sp3d2 मिल जाता है, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। अब ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ये 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिस complex is paramagnetic, this complex is paramagnetic। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने ये देखा कि जो जब भी लिगेंड बाइंड करने जाते हैं तो कुछ उनकी एनर्जी ऐसी होती है कि वो कुछ लिगेंड्स को कंबाइन कर देते हैं, सॉरी पेयरिंग करा देते हैं। कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं जो पेयरिंग नहीं करा पाते हैं क्योंकि वीक होते हैं। अब भी हमने आउटर में देखा यहाँ पे कि फ्लोरीन बहुत वीक लिगेंड है, ये पेयरिंग नहीं करा पाया क्योंकि इसकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी कम है। अब यहाँ पे ये पेयरिंग करा दिया, यहाँ पे सॉरी पेयरिंग नहीं करा है, तो इसलिए आउटर ऑर्बिटल यूज कर लिया, इनर ऑर्बिटल एज सच पड़ा रह गया। इसलिए इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक भी है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमें क्या पता लगा, पैरामैग्नेटिक है। और ये जो है कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शेप है, ये लिगेंड से हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, सेम इसी मेथड से आउटर इनर ऑर्बिटल स्क्वायर प्लेनर के लिए होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इनर ऑर्बिटल यूज करेगा और हाइब्रिडाइजेशन DT_sp2 होगा। सम नोट पॉइंट यू कैन नोट डाउन, ओके, some important point। See here, for 4 ligand tetrahedral entity, 4 ligand tetrahedral entity, ओके। यहाँ पे हमें 2 मिलते हैं 4 लिगेंड टेट्राहेड्रल एंटिटी में, आउटर और इनर, आउटर एंड इनर, For outer here is weak field ligand, weak field ligand, okay, and hybridization is sp3 shape is tetrahedral, shape is tetrahedral। example is you can take CuCl4 minus 1, yes, minus 1, and it will be paramagnetic, paramagnetic due to presence of unpaired electron।
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होंगे, पैरा मैग्नेटिक होंगे। यहाँ पे इनर ऑर्बिटल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, फील्ड लिगेंड, and the hybridization will be DsP3, DsP2, okay, and square planar, square planar, okay, square planar. Example is NiCN whole 4 plus 2, yes, plus 2, and it will be mostly diamagnetic. It will be diamagnetic, ओके। यहाँ पे अगर इनर ऑर्बिटल है तो किसी भी कंडीशन में पैरामैग्नेटिक होने के चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं, और अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पूरे चांस है, क्योंकि वहाँ पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पेयरिंग नहीं होगी। अगर पैरामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, अगर पैरामैग्नेटिक नहीं है, डायमैग्नेटिक है, तो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये हमारे हो गए यहाँ पे एक पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ठीक। तो ये हमारी हो गई एंटिटी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट आते हैं लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, BBT। नोट कर लिया होगा इसको, बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन वगैरह के लिए भी, इस तरह से इसको एक जगह ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब लिमिटेशन ऑफ VBT। पहली बात की व्हाट आर वीक and strong field ligand, not explained by VBT। इस थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं किया गया कि वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते क्या है, किनको हम वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि ये इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, व्हाट आर outer and inner ligand, orbital complex, okay, not explained by VBT। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ये भी एक्सप्लेन नहीं हुआ कि आउटर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल बनते क्यों हैं,
क्या कारण है? मैग्नेटिक मोमेंट विथ टेम्परेचर आल्सो नॉट एक्सप्लेन बाय। मैग्नेटिक मोमेंट with temperature and color formation is also not explained by also not explained by VBT। ओके, तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे लिमिटेशन देख लिए। अब कल की क्लास में हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी शुरू करेंगे, जो कि लास्ट और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। हम लोग इसे रिवाइज करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।